परमेश्वर धन्य है जिन्होंने हमें आशीष दी है। And the Bible says, if God blesses people with a gift, people bless God with a gratitude. If God blesses with the people of the gift, then we should be blessed with our attitude. मतलब कि अगर परमेश्वर ने चीजों से हमें आशीष दी है तो हमें अपने धन्यवाद से उनको बात करना, उनको धन्यवाद देना चाहिए। God wants us to be thankful with gratitude. मतलब कि परमेश्वर ने हमें चीजें दी, लोग दी, आशीष दी, तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु चाहते हैं कि हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार ही धन्यवादी व्यवहार होना चाहिए। God has so much blessing throughout the years. परमेश्वर ने पूरे साल कितने ही आशीष दी। God bless us with clothes. परमेश्वर ने कपड़े दिए। God bless us with food. खाना दिया। क्या खाना चाहिए हम खाते हैं, मीट भी हो, चिकन भी हो, कोई भी हो, हम लोग का मन में आता है, प्रभु देते हैं। So now you just see January to this month that how many a time you whatever you want to eat, God brings things to you. आप ये देखिए जनवरी से लेके अभी तक आप कितना कुछ आपके मन में आया खाने के लिए, लेने के लिए, और प्रभु ने आपको प्रोवाइड कर दिया। Sometimes we think that blessing count is just thousands of money come, then we count the money. कई बार क्या होता है जब हम पे हजारों रुपया आता है, लाखों रुपया आता है, उसको ही आशीष गिनते हैं। We think that all those things only we receive. We think that is a blessing. हमें लगता है पैसा आशीष है। But the Bible says no. बाइबल कहते नहीं। You wake up is the blessing. आप सुबह उठे ना ये आशीष। You sleep and you can sleep well. आप सो के अच्छे सो पाए ये भी आशीष। Many people in the hospital. कितने लोग अस्पतालों में हैं? But you are in the house. पर हम सही सलामत Many people they didn't have food. कितने लोग के पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है? But you have a food. पर आपके पास है। Many people they could not able to breathe. कितने लोग आज सांस नहीं ले पाते, वेंटिलेटर पर है, उनको ऑक्सीजन मास्क But you can able to serve. पर हम नॉर्मली सांस Many नहीं people पाते। they cannot see. कितने लोग देख नहीं But पाते, you can see. पर आप देख पा रहे Many हैं। people cannot walk. कितने लोग के हाथ पैर नहीं है, लकवा लगा But you है, are walking. पर आप चल Many पाते people हैं। cannot walk. कितने लोग नहीं चल पाते, Wherever they want to वो go. जहाँ जाना चाहे वो नहीं जा सकते। But January to till today, पर जनवरी से लेके इस you दिन तक are walking. आप कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। How much blessed we are. प्रभु ने आपको आशीष So there is the Bible says count the blessing of इसलिए God. बाइबल कहते हैं प्रभु की आशीष को It is गिनो। not all about the money and clothes सिर्फ ये ना and कि silver पूरे and साल gold. में कितना रुपया आया। But if God, I always say, if God give you stop breathing, अगर आप ये सोचो ना कि प्रभु आपकी सांसें ही रोक दे, then you cannot lie. You might be thousands of money. चाहे करोड़ रुपए बैंक में तो पड़ा होगा, That cannot save. वो करोड़ रुपए आपकी सांस नहीं भर सकता, They cannot able to save your life. आपके जीवन को बचा So नहीं when we look in Bible, सकता। okay, जब हम बाइबल देखते हैं, count the blessing. प्रभु की आशीष को गिनो। When we see throughout the Bible, जब पूरी बाइबल में देखते we हैं, never see about money, house, building. हम ये नहीं देखते किसी को इतनी प्रॉपर्टी मिली, पैसा मिला, बिल्डिंग बन गई, इसकी But आशीष नहीं each देते। day God is with us. पर हर रोज परमेश्वर हमारे साथ, And each day in the best situation, और हर बुरी परिस्थिति में भी God is always there. परमेश्वर है। In your sickness, आपकी बीमारी में God is always there. परमेश्वर है। That is why you are healed. इसलिए तो आप ठीक हो जाते हो। And in your financial problem, आपकी पैसों की परेशानी में God is always there. परमेश्वर है। That is why He is provided. इसलिए वो आपकी जरूरतों को पूरा करता Or है। in your struggle, आपकी मुश्किलों में God is always there. प्रभु है। That is why He always you are saved from the कभी struggle. मुश्किलों से बाहर भी निकल So जाते हैं। all these things when we see the Bible talk about the count the blessing is that it is not all about the money and then how much you have combined there, how much you do the business, how much you have the income, but God always in the Bible we see that in the best situation, in the sickness, everywhere that you do, but the Lord always stand first. तो बाइबल ये बताती है ये नहीं कि आपको कितना पैसा है वो आपकी आशीष है, लेकिन आपके जीवन की हर परिस्थिति में जब परमेश्वर आपके साथ है ये आपकी आशीष। And then also say if you have found food in your refrigerator, cloth in your body, roof in your head, and the place to sleep. If you have money in your bank, your wallet and a spare a chance in these, some places you have, you are the top number 1 in the 8 in the whole world. तो मतलब ऐसा लोग मानते हैं कि अगर आपके पास कपड़ा है पहनने के लिए, आपके फ्रिज में खाना है खाने के लिए, आपके पास सर के ऊपर छत है अगर रहने के लिए, और आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा है, तो मतलब लोग दुनिया ऐसा मानती है कि आप सबसे ज्यादा अच्छे इंसानों में मानते हैं। So you are among the top number 8 in the मतलब world. 8 दुनिया के अगर जो टॉप 8 लोग हैं उसमें आप हैं, अगर कुछ इतना है। So you have food in your fridge. आपके फ्रिज में खाना रखा हुआ है कुछ, and you have a place to sleep. आपके सोने की जगह है, and you have a place and you have a cloth to wear. कपड़े में पहनने के लिए। And all the scholars say you are the top number 1 in the तो सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि दुनिया के 8 सबसे ज्यादा अच्छे लोगों में आप But the billions people, लेकिन जो बाकी के लोग बचे हैं, they didn't have a refrigerator. इसका मतलब कितने घरों में तो फ्रिज They are खाली. उनका खाली And फ्रिज many है। millions people, कितने लोग they हैं, didn't have no place to sleep.
उनके पास सोने की जगह नहीं Many है। millions people, they didn't have a cloth to wear, आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े नहीं है पहनने के, but you have it. पर आपके पास तो है। So you should count that blessing. तो आपको उसकी आशीष को गिनना And है। also say, if you wake up in the morning and then your health are no sickness and you are survived, that is the blessing. तो अगर आप सुबह उठे और आपने देखा आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप बहुत ज्यादा आशीष हैं। Many people wake up, कितने लोग जब सुबह उठते हैं they are illness, तो एक कहीं ना कहीं बीमारी दिख जाती they है, have pain, कहीं ना कहीं they दर्द have होता है, sorrow, कहीं ना and they कहीं rush to परेशानी the होती है hospital. और फिर वो कहते हैं आज तो डॉक्टर के जाना। But you are wake up throughout the year. पर आप रोज सुबह उठ रहे हैं, You could able to wake up. आप उठ पा रहे हैं, That is the ये blessing. आशीष है। And we should count those things. तो परमेश्वर की इस आशीष को गिनना चाहिए। And they say the blessed, the 3 billion people, they could not able to wake up in the world. दुनिया के 3 खरब लोग ऐसे हैं जो रात को सो के सुबह नहीं उठते, But if you wake up, पर आप सुबह उठते हैं then you are the blessed. तो आप You बहुत are ज़्यादा the आशीषित top number 1 in the world. तो So I was collecting all these things from the, people who are counted, sanctioned, like survey करते हैं. So those people who are counted like that. तो दुनिया में जब लोगों ने सर्वे किया तो उन्होंने ये देखा कि कौन से लोग आशीषित गिने जाते हैं, तो उन्होंने ये लिस्ट बनाई। And then also, if you have experienced and in danger throughout the years, you have experienced danger. तो अगर आपके पूरे साल के अंदर कहीं ना कहीं खतरा आने का अनुभव है, You have a danger, like accident, जैसे एक्सीडेंट हुआ like you're about to die, या मरने ही वाले थे बच गए, like somebody is attacking या you, कोई अटैक करना चाह रहा था बच like गए, your family a big issue. या परिवार में बड़ा इशू हुआ तो ठीक हो गया। You have experienced or you think that today तो नहीं बचाएगा. That moment you come in your life. तो वो वक्त परिस्थिति आपके जीवन में आई है, But if you are safe on that, लेकिन उन सारी परिस्थिति में अगर आप बच गए हैं and then you are about to go to a prison, या आप जेल जाने ही वाले थे बच गए, or somebody has torturing you, या कोई परेशान कर रहा था उससे आप बच गए, or you are crying that you think that this time I will not save, या ऐसी कोई परिस्थिति है कि बहुत बुरा कि अगर मैं बचूंगी ही नहीं पर आप बच गए, or you are feel lonely, या आपको अकेलापन महसूस होता है कि or you are annoyed by somebody, या किसी और ने आपको परेशान करने की कोशिश or कर some people are annoyed, annoying, like, कोई परेशान कर रहा है, and then if you are like that, लेकिन ये सारी परिस्थितियां आने के बाद आप इन सब से छूट गए, you experience, आपने सिर्फ अनुभव किया but you are safe. पर बच गए, Then the Bible says that you are ahead of the 500 million people in the world. तो आप 500 मिलियन लोगों से भी ज्यादा आशीषित है दुनिया में आज। You are ahead of that आप उनके 500. तो आगे ही चल रहे हैं, You are ahead of that. आप उनके आगे चल रहे हैं। Many people experience. बहुत लोगों के जीवन में They are परेशानी not आई है, survive. पर बच नहीं पाए, जेल में जाना था चले गए, मरना था मर गए, एक्सीडेंट हुआ मर गए, परेशानी आई फंस गए, पर हम सबसे निकल गए। So you are safe on that and you are experiencing and going throughout the तो year. आपके जीवन में जितनी परेशानियां उसको बस अनुभव ले रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी फंसे नहीं। But come when you are safe. परेशानी तो आई लेकिन So नहीं that फंसे। the people say, the scholars say, you are ahead of the 500 million. तो 500 मिलियन लोगों से आगे है हम। And so many 500 billion people, so many other people, they are, fall into that and they could not able to इसलिए come out. कितने लोग मतलब बाकी ऐसे हैं जो 500 मिलियन लोग हैं जो परेशानियों में Some are आगे landed हैं, in hospital जो अस्पतालों में चले by गए, accident. जिनका एक्सीडेंट हो गया, Some are killed, जिनको मर some गए, are murdered, जिनको मर्डर हो गया, or some are, crashed in aeroplane. कई Some are एरोप्लेन में crashed क्रैश हो in गए, कोई ट्रेन में क्रैश हो गए, so bus, anywhere actually, some are, you are walking in the road, some people come and hit. या आप रोड पे चल रहे थे, ट्रक ने आके टक्कर मार दी, कुछ Or your family, they fight and they are about to kill you. ये परिवार वालों ने आपको मारना चाहा और आप मर गए, Or they try to cast you out from the house. या घर से निकाल दिया, But you are saved all this. लेकिन इन सारी परिस्थितियों से अगर आप निकल गए Then the Bible says you are among the 500 billion. तो 500 मिलियन And you लोगों are से आगे ahead of हैं, them. उनसे तो बढ़िया ही है। So we should thank God. तो इसके लिए भी धन्यवाद ही होना है And we should be thank God that God saved your life. कि परमेश्वर आपके जीवन को बचाया। Satan come in that situation. शैतान आया था उस समय आपको मारने के But लिए, God make time परमेश्वर ने ऐसा रास्ता around निकाला to कि आप बाहर निकल गए। Amen. Amen. And then also when the was last time that you told God that I will do this, I will do this, but you didn't do it. But God didn't punish. तो आपके जीवन में ऐसा भी हुआ कभी-कभी कि आपके परेशानी आई और आपने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर बस आप इस परेशानी से बाहर निकाल दो तो मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, पर आपने किया तो नहीं और परमेश्वर उसकी सजा भी नहीं दी And then you are blessed. और आपको आशीष दे दिया You परमेश्वर। should count those तो blessings. वो भी सारे आशीष। We make covenant कई God. बार हम ऐसी बात करते हैं कि प्रभु ये हो जाए तो देखना मैं ये कर दूंगी,
And throughout the January, that one you have committed the new year that I will do this year, this year. और कई बार क्या होता है जनवरी में या फिर दिसंबर आखिरी 2023 में हमने बहुत सारे कमिटमेंट्स करे कि प्रभु के लिए हम ये करेंगे, इस साल ये करेंगे, ये करेंगे। So before December, set back what you have तो committed. दिसंबर से पहले सोच रहे हैं क्या बातें बांधी थी जो नहीं करी। And you are writing down. अगर आपने लिखी थी And if not doing, then be fulfilled. तो अगर अभी तक नहीं करी तो नहीं कर लें। So last time we have a general meeting. We will say that let us go this year mission trip. तो पास्टर ने याद है कि पिछली बार जनरल मीटिंग में कि हम इस साल एक मिशन ट्रिप पे जाएंगे। And at that meeting time you say we कहाँ जाना है? So but you see God bring and then in my heart always that burden. No, I must be fulfilled. तो पास्टर कह रही है कि सब लोग पूछ रहे थे कि पास्टर कहाँ जाएंगे? पास्टर कह रही तब तो पता नहीं, प्रभु अपने आप बताएगा बाद में जाके। और पास्टर कह रही मेरे दिल में बर्डन भी चल रहा था कि अरे मैं कहाँ लेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। Not कहाँ जाएंगे, but you know I need to fulfill that परमेश्वर कि अगर वादा किया है जनरल मीटिंग में कि हम कहीं जाएंगे तो वादा पूरा करना है। पास्टर कह रही ये बर्डन था। So we need to fulfill what you have committed. तो हमने जो बोला है वो करना है। Because if we say okay, we are going, but if we didn't fulfill, then we are धोखा देते हैं. Then you are not keeping your promise. तो इसका मतलब अगर आप वो चीज नहीं करते जो आपने बोली है, मतलब आपने वादे को पूरा नहीं But किया। when we do it and when you try, God always open the door. लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं कुछ करने की तो परमेश्वर रास्ता भी खोल देते हैं। So the people say that when you are many a time we didn't count that we say to God, I will do this one, I will do this one, and God has did to you. But after we receive it, we forgot to count the blessing. तो कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से वाचा मांगते हैं कि प्रभु आप ये कर दोगे तो हम ये करेंगे, लेकिन हम वो नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं, जानबूझ के उसे नहीं करते हैं। और हम मिलते हैं तो खुशी होते हैं, ओ प्रभु धन्यवाद। बट बाद में हम बोलते हैं और प्रॉब्लम आते हैं तो ओ वादा करते हैं, नहीं इस टाइम तो मेरे को ऐसा करना है, मैं इस चीज के लिए फास्टिंग लेंगे, आप ऐसे करेगा तो मेरा लाइफ ऐसा हो जाएगा। तो हम फास्टिंग भी लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बहुत चीज है, ऑफरिंग भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, अब ही काम करेंगे तो मैं ऐसे करेगा। तो प्रभु तो काम करते हैं, लेकिन हम मिलते हैं तो बाद में हम बोलते हैं। But Bible says we should count those blessings. पर हमें सारे आशीर्वाद को गिनना चाहिए। What God has done behind the scenes, so many things. तो परमेश्वर ने हमारी बिना देखी चीजों में बहुत सारे काम करे हैं। Amen. Amen. And then also Christ see the reality life, and God is the one who provide all our needs. तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। He see your needs. वो आपकी जरूरतों को देखते हैं। Something that you didn't ask. कई बार कुछ चीजें आप मांगते नहीं है, You never ask. आपने मांगा नहीं है, But still, पर फिर भी every day, हर रोज God has provided. प्रभु देता है। And because He see that before things happen, God knows that what is going to happen in the next. क्योंकि आगे चीजें होने से पहले ही परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। In all things, सारी चीजों में, financial, पैसों में, health, सेहत में, family, परिवार में, खाने में, kitchen, clothes, कपड़ों में, रसोई में, बाहर जाने में, अंदर आने में। God see everything what is you are needed. परमेश्वर हर चीज देखते हैं कि क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है And what is going to be come problem. और क्या परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। But He see all these things. परमेश्वर सब चीजें देखते हैं And He made everything every day make beautifully and और परमेश्वर हर successfully. एक चीज आपके जीवन में सफल कर देते हैं। So we should thank God that even though God you might not talk to God, even though you might not asking God, but every day morning to till night you accomplish the work. And God, the Bible says, God is working. तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप पूरे दिन परमेश्वर से नहीं मांगते, बहुत सारी चीजें नहीं मांगते, पर फिर भी सुबह से शाम तक आपका सारा काम सफल होता जाता है। ये परमेश्वर है। And Christ has provided solution for your life. परमेश्वर आपके जीवन में सारे हल डाल दिए हैं। So that is why we are counting that's why we should count the blessing of God each day, not only today. तो सिर्फ आज नहीं, लेकिन हमें अपने जीवन के हर एक दिन परमेश्वर के आशीष को And गिनना we also चाहिए। let us turn to there is in the book of Psalms is all about counting of blessing. भजन संहिता के अंदर बहुत सारे वचन धन्यवाद देने के बारे में। I was preaching on the last what is that Tuesday, but today I also want to talk again in the Psalm 103. भजन संहिता 103 Psalm 103 turn and 103 and let us read 1 to 5. आइए पढ़ते हैं 1 से 5। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तब तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को
को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। Amen. So here the Bible says that let us count the blessing who have forgiven all your sins. तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर का शुरू गिनना है कि प्रभु ने मेरे सारे पापों को माफ किया है। And the verse 1 says in that Psalm 3, bless the Lord, all my soul, all that is within me, bless His holy name. So we should bless God. तो हमें परमेश्वर को आशीष देनी चाहिए। And say, bless the Lord, all my soul. परमेश्वर को पूरी तरह से हमें धन्य कहना चाहिए। David said that I bless the Lord, all my soul. तो वो कह रहे थे पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर को धन्य कहना है। Sometimes we say thank you. अगर हम धन्यवाद बोलते हैं, We say to people or we say to like that, but inside is no, I'm not surely like that. But inside is something, but you want to please that man or woman. कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर से तो कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन सामने वाले को सिर्फ खुश करने के लिए हम थैंक यू बोल देते हैं। कैसे? For example, you like yellow. जैसे आपको येलो पसंद है, I give red. मैंने वो रेड दे दिया। That neighbor तो thank करेंगे, लेकिन आपका दिल से मैंने वो येलो को सैयद के पास ले दिया। Happy birthday, thank you. You see, that is not the Bible talk about. तो बाइबल उसके बारे में नहीं बताता। The Bible say that blessed the Lord, all my soul. तो दाऊद यहाँ पे कह रहे हैं परमेश्वर को धन्य कह जो कुछ कुछ में है। We should bless the Lord and we should thank God for all under no 50-50. सिर्फ 50% नहीं, लेकिन पूरा 100% रूप से धन्यवाद। And God knows it. परमेश्वर जानता है। You say that you want something else, आपको कुछ और चाहिए था, or you say something else, या आपने कुछ और कह दिया, then God knows that is why the Bible said that is the double standard life. तो बाइबल बताती है कि वो दोहरा जीवन अगर आप जी रहे हैं। If you don't want, then don't want. नहीं चाहिए तो बोल दो नहीं I चाहिए। like red, then you say I like red. अगर आपको लाल चाहिए तो बोल दो मुझे लाल You चाहिए। like white, then you say white. आपको सफेद चाहिए तो बोल दीजिए But सफेद we चाहिए। compromise. पर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। And then wait a minute, thank you. No, but God knows that deep down in your heart that is not that you are not blessed with all your heart and with all your soul. तो परमेश्वर को पता है कि आप पूरे दिल पूरे मन से खुश नहीं हो उस चीज में। So this is the written by David. तो दाऊद ने से लिखा है David, whatever you do, कि जो कुछ वो करता है, he blessed the Lord with all वो his परमेश्वर को हर एक चीज के लिए पूरे मन से धन्यवाद with देता है। all his mind, पूरे मन with से, all his spirit, जो कुछ with उसमें all है, his heart. पूरे दिल पूरे मन पूरी आत्मा So से। when you give thanks to God, तो जब परमेश्वर को धन्यवाद दें, when God walk in your जब life, परमेश्वर के जीवन में काम when करें, God give food, प्रभु खाना दे, when God give clothes, प्रभु कपड़ा when दे, God give children, प्रभु बच्चे दे, when God give money, प्रभु पैसा दे, when God give church, या चर्च दे, when God give pastor, या पास्टर दे, when God give members, या मेंबर्स दे, when God give ministry, या मिनिस्ट्री दे, we should give thanks to तो God हमें पूरे दिल से धन्यवाद with all our heart, with all our पूरे दिल, mind, with पूरे all मन our से। soul. Amen. Amen. So sometimes we can take sports show. So that is the things that God wants us. तो यही चीज परमेश्वर हमसे चाहते हैं। So now that we talk about this, so David said, all this within me, bless His holy तो name. यानी कि जो कुछ में है, मैं उसके नाम को पवित्र करूं। So you say that all is within His heart, जो कुछ में है, not pretending. सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। So God wants us. There's enough in the Ephesians say, give thanks for everything, तो बाइबल में लिखा है कि हर एक चीज के लिए धन्यवाद every करो। circumstances, हर परिस्थिति even though you are sick, चाहे कैसी even though you are परिस्थिति in में, danger, चाहे खतरे में हो, also give thanks to God. हमेशा धन्यवाद दें। So here David is the David. You know that's the Bible talk about David is the God of their own heart. तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो दाऊद था उसका हृदय प्रभु के अनुसार था। Because you see David's life, क्योंकि दाऊद का जीवन just like you and I, आपके में इतना था, he also murdered, उसने खून किया, he also committing sin, उसने पाप he किया, also committing adultery. उसने व्यभिचार किया, But still, लेकिन when he come to God, जब प्रभु के पास आया, he come with all his heart, उसने पूरे दिल he से come आया, with all his mind, पूरे मन से आया। and that's why he said, "Bless the Lord with all my soul." इसलिए वो कहता है पहले मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे। So that is how the David life is. तो दाऊद का जीवन That ऐसा is है। so God see his under deep down his heart. इसलिए परमेश्वर के अंदर के मन को देखते थे। That's why that God said to David, "You are after my own इसलिए heart." परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। Throughout the so many prophets, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं में, so many ministers, बहुत सारे so many सेवकों में, faithful बहुत सारे God. दासों में, बहुत सारे But विश्वासियों God में, never said those people. पर परमेश्वर ने उनको कभी ये चीजें नहीं But बोली। God said to David, पर परमेश्वर ने दाऊद "You को are कहा after my own कि heart." तुम मेरे हृदय के अनुसार हो। Because David was so clean and clear in the eyes of God, his heart. क्योंकि दाऊद ने अपने चाहे सही था चाहे गलत था, लेकिन प्रभु के सामने वो एकदम साफ रहता था, He ईमानदार loved रहता with था। all his heart. वो पूरे God. दिल से प्रभु को प्रेम करता He था। served the nation with all his heart. पूरे देश को उसने
पूरे मन से ईमानदारी से He सेवा करी, worked with all his heart. उसने पूरे मन से So चलता था। go see inside his तो heart. प्रभु उसके मन के अंदर No देखते थे। pretending. वो दिखावा नहीं No करते थे। dikhana. कुछ That नहीं। is why you see David was dancing in the room, in the church, in the tabernacle, but nobody is there. He was worshiping, doesn't care the people. तो इसलिए दाऊद जो अकेला भी होता था परमेश्वर की आराधना करता, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अकेले में भी। For him there is congregation, for him there is no congregation. For him is the matter of God and him. तो उसके लिए जो भीड़ में हो चाहे वो अकेले में हो, उसके लिए ये फर्क पड़ता है कि परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ। So that whether people there or not, चाहे लोग हो या ना हो, he come with all his heart and वो mind. पूरे दिल से आता था। That's why God said that you are after my own heart. इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हृदय के अनुसार So हो। this is brought by some. तो ये दाऊद So the Bible says when you bless, तो जब आशीषित होते हो, you should bless with all your heart, with all your तो mind. प्रभु को पूरे दिल पूरे मन से धन्यवाद When देते you हो। will give thanks to जब God, आप प्रभु को when धन्यवाद you देते हो, count the blessing of जब प्रभु God, के आशीष गिनते हो, you should count the blessing of God. प्रभु के आशीष गिनना है Oh God, thank you for the church. कि प्रभु धन्यवाद Thank you for the करें members. मेंबर्स के Thank लिए, you for the pastor. पास्टर के लिए, Thank you for the ministry. मिनिस्ट्री के लिए, Thank you for the house. घर के Thank लिए, you for the food. खाने के Thank you लिए, for the children. बच्चों के लिए, Thank you for the women prayer meetings. वुमेन प्रेयर मीटिंग See, के we धन्यवाद, should with all our heart, with all our mind. पूरे दिल पूरे मन से मैं धन्यवाद देना चाहिए। Then the Lord, that God wants us. वही परमेश्वर हमसे And चाहता है। then verse 2 says, और दूसरे वचन में लिखा है, and bless the Lord all my soul, forget not all his benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या उसके किसी उपकार को मत भूलना। What kind of benefit? किस तरह के उपकार? See, God is so much blessing us. परमेश्वर ने कितने आशीष दिए, We are so much benefit from हम God. परमेश्वर से कितने फायदे हुए हैं। That's why the Bible said, bless the Lord, all my soul. Thank God for all the benefit throughout the years that you have received from God. मतलब पूरे साल परमेश्वर ने आपको इतना उपकार किया, इतने साल के लिए काम किया, उसको भूलना मत। For God is no benefit, परमेश्वर को फायदा नहीं हुआ आपको देकर, but for us is a benefit. लेकिन परमेश्वर ने आपको फिर God दिया। provide food, परमेश्वर को God खाना दिया, provide life, जीवन God दिया, provide job, नौकरी दी, God provide marriage, शादी दी, God provide all the whole परमेश्वर ने ministry, आपकी सारी मिनिस्ट्री दी, and God leading you. परमेश्वर ने Even अगुवाई God करी, provide the word of God. परमेश्वर ने वचन दिया, God give us joy. परमेश्वर ने God आनंद give दिया, us peace. शांति God दी, give us healing. चंगाई दी। See, we receive every benefit from God. हर एक फायदा हम परमेश्वर से उठाते हैं। That's why the Bible says, give thanks to इसलिए God. बाइबल कहते हैं धन्यवाद Count दो, those blessings. उन्हें गिन तो लो। And count those blessings that, there is a one song, count the blessing of God one by one. तो एक इंग्लिश में भजन है कि परमेश्वर के आशीषों को गिनो एक एक करके। Count the blessing of God one by one. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what Lord has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So that is why if you count morning till evening, we can't able to count. अगर हम सुबह से शाम तक गिने ना तो हम गिन ही ना पाए इतने See, you प्रभु। come to church also a आप blessing. चर्च में आ पाए सही सलामत ये भी आशीष You are है। sitting, the listening of God also a blessing. आप यहाँ बैठे हैं, प्रभु का आशीष सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ये भी So you आशीष है। should count. तो हमें गिनना है। All these things are not our goodness. ये सब जो हमें मिला है ना, ये हमारे अच्छे होने की वजह से All नहीं these मिला। things is not our our good work. हमारे भले कामों की वजह से नहीं We मिला। are nothing good. हमने अच्छा तो कुछ किया ही क्या? I am nothing good. कुछ भी अच्छा नहीं है। Every second, every minute हम लोग का सोचना, देखना, मन इतना गंदा है। लेकिन प्रभु तो इस चीज में नहीं देखता, सफाई करे हम लोगों को। And He always bless us. परमेश्वर हमेशा आशीष देते हैं। So that is why Bible say that forget not all His तो benefits. बाइबल कहती है कि उनके सारे आशीषों को नहीं भूलना Many a है। time we forgot. बहुत अक्सर हम भूलते हैं। Many a time how God has healed you many a time. कितनी बार परमेश्वर को ठीक किया, How God has provided you many a time. कितनी बार अपनी जरूरतों को पूरा How किया, God has helping you many a कितनी time. बार आपको मदद करी, How God has giving you good many a time. कितनी बार आपको अच्छी चीजें दी, How many times God has giving you clothes. आपको अच्छे कपड़े दिए, How many times God has giving you friends. आपको अच्छे दोस्त दिए, How many times God has giving you job. अच्छी नौकरी दी, How many times God has giving you money. आपको पैसा दिया, But we forgot all those things. पर हम इनको तो कभी नहीं गिनते। After receiving after. जब मिल गया एक के बाद एक, एक के बाद एक, And we forgot. हम भूलते Then जाते we हैं, ask again. फिर हम फिर मांगते हैं, But we never count. पर हम गिनते But the हैं। Bible said, count and you should not forget it. But all the benefit that you receive from तो God. जितने फायदे आपको परमेश्वर से आज तक हुए उसे भूलना नहीं है। So Bible, God also want us to count. परमेश्वर चाहते हैं कि हम गिने और धन्यवाद दें। See,
God also demand count. प्रभु भी कहता है कि Forget not. भूलना मत। I said, Priti, I give you Bible. पास्टर कहती है मुझे तेरा बाइबल Don't दी। forget it. भूलना You मत। should give thanks to me. थैंक यू पास्टर। So here the Bible also says, तेरा बाइबल में लिखा हुआ है। God said, don't forget. परमेश्वर ने जो मैं देता हूँ उसे I have भूलना मत। given all the profit. कि मैंने क्या क्या I तुम्हारे am लिए किया giving है। all the benefit. तुम्हें क्या क्या फायदे दिए। See, sometimes God also wants His mahima, not to glorify. परमेश्वर की महिमा उससे ही है जो कुछ मिलने के बाद हम धन्यवाद Because करते प्रभु हैं। के लिए लेना देना, but प्रभु का क्या है? प्रभु का मन है, वो का ना, वो ये glorify Him. कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए ही बनाए गए So हैं। God said to us, don't forget. तो परमेश्वर कहता है भूलो मत। I have given all the things. मैंने कितना कुछ तुम्हें दिया आज तक। So that means God said that you should give thanks to me. तो प्रभु कह रहा है धन्यवाद दे दो। So प्रभु का हम वापस देना तो कुछ नहीं हम लोग के पास में. प्रभु ने इतना कुछ दिया, हम दे तो कुछ You नहीं have सकते। nothing to give back to God. हम वापसी पैसा नहीं दे सकते, कपड़े नहीं दे सकते, खाना नहीं दे प्रभु सकते। तो इतना rich है. God is so much rich. प्रभु कितने अमीर हैं। प्रभु का पास unlimited है. उनके पास असीमित चीजें हैं। So हजार you giving back to 1,000. प्रभु ने अगर 1000 दिया तो आप You 500 वापस giving नहीं कर back सकते। 1 lakh. तो आप 1 लाख वापस प्रभु नहीं के कर लिए सकते। कुछ नहीं है. प्रभु का 1 लाख दोगे भी तो उनके लिए तो कुछ नहीं So है। Bible says don't forget it. इसलिए प्रभु कहता है इसे भूलो But मत। He won. पर करो क्या फिर? God give thanks. सिर्फ धन्यवाद दो Count His blessing. कि क्या क्या कर दिया What आपने I हमारे receive. जो हमने पाया है। If I want to give back to God, अगर मुझे प्रभु को वापस देना हो, even this morning to till now, सुबह से लेके अभी तक I have nothing to give back. क्या वापस दे सकते? Because for Him is you give back one flower. अगर आप मुझे प्रभु ये सारा कुछ सामने एक He फूल has वापस दे दो। billions of flowers. प्रभु का मेरे पास पहले ही बहुत One flower entering to His life. अगर एक मेरा एक फूल प्रभु के पास चला Cannot see जाएगा, it. प्रभु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे Because पास He is so much rich. जी प्रभु इतना But अमीर God है। said don't give back. प्रभु कहते वापस मत दो। I give money, don't give back. मैंने पैसा दिया तो I give good health, don't give मैंने back. अच्छी सेहत दी I वापस give दो। joy, don't मैंने give back. आनंद दिया वापस I दो। give job, don't give मैं back. नौकरी दी I वापस give दो। business, don't give व्यापार back. दिया I वापस give दो। family, don't give back. परिवार दिया वापस But दो। I want you. पर चाहिए क्या? Give thanks. धन्यवाद तो दे दो। Count the blessing. कि क्या कर दिया मैंने? Don't forget it. इसे भूलना मत। So God is telling. प्रभु कह रहा है Sister Dima, I give you money, don't forget it. So God is telling like that. Sister Sarika, I give you family, don't forget it. Mommy, I heal you, don't forget it. That is the God is telling us. प्रभु हमसे ये कह रहे हैं But He said, give thanks to और God. धन्यवाद दे। See, this is the word of God. ये So परमेश्वर I का was thinking, no, I was meditating. So that is God. God also just like human being. तो पास्टर कह रहे मैंने सोचा तो परमेश्वर तो इंसान की जैसे God is है। telling me, don't forget प्रभु it. कह रहा भूलना मत मैंने कुछ You किया था। if you forget, I will not forget it. What I have done to you. प्रभु कह रहा मैं भी नहीं भूलता मैं तुम्हें क्या क्या दिया है। God see everything. प्रभु हर I was saying that God hear even our ear. बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे सर के बालों की भी गिनती जानता है। He know each one of them. वो हर एक बाल को जानता So है। whatever He did to you, तो जो परमेश्वर ने आपके लिए whatever किया, He given, you आपको जो got दिया है, all the benefit. आपने बहुत सारे फायदे उठा लिए। God will not forget. प्रभु कहते मैं भूला नहीं हूँ क्या किए। God is the day that you come into this तो world. जिस दिन आप इस दुनिया में आए, Now I am 46 years. 46 साल की है। Throughout the 46 years, इस पुराने 46 सालों में whatever God has given, प्रभु ने क्या क्या He दिया है। know everything. प्रभु को तो सब याद है मैंने क्या क्या दिया है। Single also He didn't forget it. एक चीज भी भूला नहीं। Why do I forget? पास्टर कह रहे मैं तो ले लेके भूल Even गया। last month, whatever God has done, we पिछले forgot. महीने में जो प्रभु ने दिया हम Even भूल गए। Monday, मंडे को क्या even किया? Tuesday, तो वो मंगलवार ही भूल गए। even Wednesday, we forgot. हम भूल जाते हैं प्रभु में कितना But God कुछ देता है। said, don't forget it. मत भूलो। If you forgot it, अगर तुम भूल गए I will stop giving. देना बंद कर दो। Not like that. Okay, somebody say, don't ये forget. मजाक। He said that don't forget all the benefit that तो you have. परमेश्वर कह रहे हैं जो सारे उपकार हैं उसको मत भूलो। So that means He didn't forget it. तो परमेश्वर इसका मतलब परमेश्वर भी नहीं भूलता तभी तो कह रहे हैं तुम भी मत भूलना। That is why sometimes when we forgot it, कई बार जब हम भूल जाते हैं, something that you speak to God कभी कभी अपने प्रभु से कुछ कहते and you हैं, receive it, आपको मिलता है, then after some time, बहुत समय के बाद God reminded it. In your life also like that or not? कई बार क्या होता है कि आप प्रभु से कुछ कहते हैं कि आप ये करेंगे और प्रभु आपकी बात मान जाते हैं तो प्रभु को आप तो भूल जाते हैं कि ये करना था, लेकिन कुछ समय बाद कभी आपको ऐसा होता है कि वो चीज याद दिलाता है परमेश्वर अरे वो तूने करना था मेरे तूने किया नहीं। The Holy Spirit reminding पवित्र you. आत्मा कैसे बोलती है तूने वो करना था किया नहीं। Or you might be sometimes through other testimony, or sometimes you might be reading the Word of God, or sometimes you might be cooking. Many a time in the Bible, God always reminding something that I forgot or something that I need to do. कई बार दूसरी गवाहियां सुनते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या प्रचार सुनते हैं तो परमेश्वर कुछ ना कुछ अंदर से बात करता है। And then you are so that is how the Holy Spirit time to time
he reminds us, don't forget what God has done. तो पवित्र आत्मा याद दिलाती है कि Then भूलना मत we जो say, किया। oh, I need to do. मैंने ऐसा कर दिया, हाँ मैं ऐसे करेगा। हाँ तो that is the work of the Holy तो Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है हमें याद दिलाना। And so that is why the Holy Spirit sometimes we forgot it and He reminds तो us. पवित्र आत्मा का काम ही है हमें याद दिलाना। So that when reminded, जब पवित्र आत्मा हमें याद when we दिलाता है, convicted again, जब वो हमें कन्विक्ट करता है अंदर we से, should give thanks. तो उस समय याद आने के बाद तो हमें धन्यवाद देना And then चाहिए। when He convicted, और जब हमें बोलता है whatever you have, speak to God. कि हमने जो प्रभु से बोला, करना है. जब याद आने के बाद तो करना है, Because He is reminding you to do again. क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए ही याद दिलाया है ताकि हम वो करें। But if we disobedient, लेकिन अगर हम बात नहीं मानते पवित्र आत्मा की, then we are the children of disobedience. तो मतलब फिर तो हम अनाज्ञाकारिता के बच्चे Then we हैं। didn't receive the God blessing. तो हम परमेश्वर के आशीर्वाद को So और नहीं time to पाएंगे। time, the Lord reminding you to do something. तो कई बार परमेश्वर को बार-बार बात करेगा, ये कर, ये कर, ये कर, You must do it. तो कर लो। And the more you तो disobedient, जितना प्रभु की बात मानोगे नहीं, the more your blessing will stop. उतना ही आपकी आशीष धीरे But धीरे the more हो you obey, पर जितना प्रभु की बात मानते the जाओगे, more your life will grow. आप होंगे आपका जीवन बेहतर में बेहतर। Amen. आमीन। And then also the Bible says in verse 3, now who forgive all your iniquity तो परमेश्वर के सारे अधर्म को क्षमा करता है, and heal all your disease. सारे रोगों को चंगा करता है। See, God forgive all your iniquity. See, आप कितने पाप हमने किए परमेश्वर ने माफ किया। God didn't say that, oh, I forgive you only lies sin. परमेश्वर ने सिर्फ झूठ का पाप मैंने माफ नहीं किया, And God didn't say that I forgive you only gossiping sin. सिर्फ चुगली का पाप माफ नहीं किया, God didn't say that I forgive you only hatred, envy, सिर्फ jealousy. नफरत का ही पाप माफ नहीं किया। Or I forgive you, we didn't go to church. या तुम चर्च आज छुट्टी मारी थी ना, मैंने सिर्फ वही पाप माफ नहीं किया। God didn't say. प्रभु ने The किया। Bible says, if you come to God, अगर प्रभु के पास आते He forgive all your यानी sins. कि तेरे सब अधर्म को क्षमा सकता है। He didn't see this I forgive, this I प्रभु ये नहीं कहता forgive. एक कर दिया, दूसरा नहीं करूंगा, तीसरा कर दिया, चौथा नहीं करूंगा, ऐसा हम नहीं। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, ये तक तुम्हें होगा माफ करेगा, लेकिन तो अभी तो बहुत हो गया, ये चीज तुम्हें माफ नहीं करेगा। ऐसा होता है ना, हम लोग का दुश्मन और हम लोग का परिवार, पहले तो मैं माफ को इतना कर दिया, लेकिन ये बच्चा तो, ये बचन तो और ये गाली तो मैं नहीं बोलेगा। और पहले तो मैं को इतना को माफ कर दिया, लेकिन ये लाइफ में ना मेरा इतना दुख हो गया, मैं माफ नहीं करेगा। तो हम तो ऐसा होते हैं। But God said, I forgive all your sin. तो परमेश्वर हमारे 1, 2, 15, 20 नहीं, लेकिन हमारे सारे ही गलत When कामों you को माफ repent, करते हैं। जब हम पश्चाताप when करते you हैं, come to God, जब प्रभु के पास आते हैं, God didn't say that I will forgive you. Okay, this time don't do it again, or I will not forgive you this thing. तो प्रभु ये नहीं कहते कि ठीक है अभी तक तो माफ कर दिया, ये वाला मत करिए, पाप माफ नहीं होगा। But if you repent and come back पर to अगर God, हम पूरी तरह पश्चाताप करते हैं, and वापस you आते give हैं, thanks और with all your heart and all पूरे your मन mind, से धन्यवाद देते हैं, then God said, I forgive all your तो sins. प्रभु कहता है मैं तुम्हारे सारे Big पापों को sin, माफ करता small हूं। चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, Hurting sin, चाहे किसी का दिल दुखा रहा हो, broken heart sin, कैसा भी पाप, gully sin, any kind of sin. कोई भी तरह का पाप, He said, I forgive all your प्रभु sins. कहता हूं तुम्हारे सारे पापों को माफ करता हूं। But our parents, पर मम्मी our पापा husband, या पति our wife, या बीवी our children, या मेरे बच्चे, मम्मी ये तक तो मैं आज तक माफ नहीं करेगा। आज तो बहुत हो गया, ये तो माफ नहीं होगा। हाँ, आगे में नहीं जाएगा। और sometimes you tell your husband, या कभी अपने पति से आप बोले this is too much. आज तो बहुत हो गया, मैं 5 साल हुए का माफ करते करते, मैं 10 साल हुआ माफ करते करते, आज टाइम पे मैं माफ नहीं करेंगे, मैं घर जा रहा हूँ। So we used to like that. तो ऐसा ही लोग करते हैं। But God said, परमेश्वर कहता है if you repent, अगर आप पश्चाताप I करते forgive हैं everything. तो मतलब सारे अधर्म, And then when God forgive, तो जब परमेश्वर माफ करते हैं, God, He never count again. परमेश्वर माफ करने के बाद उसे गिनता नहीं है, And He will not say, He will never remind again. परमेश्वर बार बार पाप को याद भी नहीं दिलाता He है, will never think again. परमेश्वर दोबारा उस पाप की That's why in Isaiah chapter 1 verse 18. यशायाह के 1:18 में Your लिखा है sins are like a red like कि this. तुम्हारे पाप से कितने लाल हुए ऐसे, But if you come to me, जब तुम मेरे पास आते हो whether as मैं तुम्हें हिम के समान so बर्फ के that समान means साफ He करता हूं। making us a white as a मतलब snow. परमेश्वर बर्फ के समान साफ करते हैं। Then He never see again the red. तो जब परमेश्वर एक बार साफ करते तो प्रभु ये नहीं कहते कि तुम ऐसे लाल भी थे, He completely become white. पूरी तरह आप साफ हो चुके होते हो। So God will never remind again and again. परमेश्वर बार बार याद भी नहीं We दिलाता, to remind again and again. पर हम बार बार याद दिलाते Even हैं। though मातु कर दिया, लेकिन हम ना time to time remind करते हैं और time to time बात करते रहते हैं. So that is not. So I was telling to one lady. पास्टर कहती मैं एक बहन से कह रही थी, I told her, forget it. पास्टर ने कहा अरे हो गया ना छोड़ो, But he said, I forget. तो लेडी कह रही मैं भूल तो I गई हूँ, forgive it. मैंने माफ भी कर दिया, But every day he speak about those things and he is angry. पर रोज रोज इसी बारे में बात होती है, रोज So रोज first
forgive नहीं है. That is not all about forgive. Forgive means something that you just remove it. तो माफ करने का मतलब क्या है कि आपने उस व्यक्ति को माफ कर दिया तो कर दिया, वो कल परसों तरसों इसी बारे में सोचते रहोगे तो वो माफ करना नहीं. That is not forgiveness. वो माफी नहीं हुई. Sometimes ना हम कोई को इंसान को माफ कर दे, लेकिन वो से ना दिखते आपका सामने आते तो ई बढ़ते. हार्टबीट बढ़ जाती That है. is उसकी not शक्ल माफ. दोबारा देख के कुछ So that is not माफ. तो अगर आपको उसको देख के दोबारा से मन में घृणा, जलन, गुस्सा आ रहा है तो मतलब आपने अब तक माफी नहीं For की. example, ये प्रीति मेरे साथ नहीं है, तो हम सोच रहे हैं आपको माफ कर देंगे. लेकिन प्रीति मेरे सामने आया तो इतना मन आता है मारेंगे को और मैं ऐसे करेंगे. So that is not तो फिर इसका forgiveness. मतलब आपने आज तक सच्ची माफी दी ही नहीं है. So God is telling, when God forgive you तो जब परमेश्वर को माफ करते हैं and He forgive us, और हमें माफ करते हैं, when you come, जब आप अगर दोबारा परमेश्वर के सामने जब आते हैं then you will think that nothing is not परमेश्वर happening. कहता है कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ो अब तो सब नया हो चुका है. So God will loving you तो परमेश्वर आपसे प्रेम Hearing करेंगे, you. आपका ध्यान and रखेंगे God want to see you moving और forward. परमेश्वर चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो क्योंकि आप उनके मन में आपके लिए कुछ नहीं बचा. So that is how God said, I forgive all your iniquity. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सारे अधर्मों को माफ करता हूँ. So God said, you and I also need to be like this. परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं भी ऐसे ही बने. If you make it like that, अगर आप ऐसे बन सकते हैं you are the real child. तो आप प्रभु की अच्छी संतान बन जाते हैं. But still, if you can't do पर that, अगर आप आज भी लोगों को माफ नहीं कर but पाते still, then we are still Christian life, you know. मतलब मसीह जीवन अभी तक तो नहीं हुआ. So we are still 50-50. तो अभी तो 50% आया, 50 अभी भी वही गड्ढे में है. But God said complete. लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरह से आप बाहर निकले. So that's what God said that. He said that I forgive all your sins and iniquity, and then also who heal all your diseases. परमेश्वर आपके सारे लोगों को क्षमा करते हैं. When you go to doctor, जब डॉक्टर के पास जाते doctor cannot heal all your sickness. हैं, एक डॉक्टर आपकी सारी बीमारियों को ठीक नहीं करता. भाई इधर बाइबल में बताते हैं मैंने सारे आपका बीमारी को संगाई कर दिया. तो God is a specialist for everything. तो परमेश्वर हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट है. He is specialist eyes, he is specialist head, he is specialist face, he is specialist everything our body. हमारे शरीर में हर एक चीज का स्पेशलिस्ट God परमेश्वर ऐसा नहीं है कि तक तो मैं आपको संगाई नहीं कर सकता. प्रभु का नहीं है. प्रभु बता रहे सारे बीमारी visible and invisible. चाहे कोई बीमारी हमारे अंदर दिखती है चाहे नहीं भी दिख रही है अभी शरीर में. There is so many disease inside हमारे that अंदर कितने रोग होते हैं we can't see. जो हम देख भी नहीं सकते. And there is so many disease that doctor cannot diagnose. और बहुत सारी बीमारी हमारी ऐसी है जो डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाता कि चल क्या रहा है शरीर That's में. what many people say. I went to doctor. इसलिए कई लोग कहते हैं वो डॉक्टर के पास गया तो Everything become normal. रिपोर्ट तो निकाली पर सब कुछ ठीक था. Everything become normal. सब कुछ ठीक But आया. inside I'm पर अभी nowhere. दर्द तो है. Inside day and night I am अभी परेशानी wondering. तो है लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा. And people will see many a time people come for here. They are so patla. बहुत सारे लोग होते हैं चर्च में बहुत But पतले होते report हैं. bringing everything is रिपोर्ट में normal. लिखा सब ठीक है कुछ बीमारी ही नहीं है And they do everything. और वो सब कर रहे हैं. Intestine, kidney, heart, lung, cost, क्या बोलते हैं? That something is missing, going down and seeing the stomach. क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी तो कुछ ऐसे बोलते हैं. एंजियोग्राफी. Angiography or another name also there. एंजियोग्राफी No, endoscopy or something. yes. मशीन उसे. कैमरा So many times people telling me like that. तो पास्टर को बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं They see everything going inside machine. कि वो एक छोटा सा कैमरा होता है जो बॉडी में जाता है और सारे पार्ट्स को देखता है. कुछ भी नहीं मिला लेकिन मैं तो रोज बीमार का चलते रहते. So that see that because people are not human beings, not God. क्योंकि जो डॉक्टर है वो परमेश्वर है. That's what God said. I heal all your disease. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सारे रोगों को नचना. I heal all your disease. मैं सारे रोगों All your बीमारी. सारी बीमारी All your symptoms. सारी चिंताओं So को. God is healing not only sickness. तो Okay? परमेश्वर हमारे सिर्फ शरीर की बीमारियों को Your ठीक नहीं broken करता. heart. हमारा टूटा दिल. You're disappointed. कभी हम निराश हो You जाते are हैं. sorrow. हम दुखी हो जाते हैं. Pain. दर्द होता है. All kinds of things that going through our life. तो हमारे जीवन में जहाँ जहाँ बीमारी है चाहे वो दिल की हो चाहे शरीर की हो चाहे मन की हो And the real sickness also. और जो there. सही जो बीमारी भी है Like TB, cancer, diabetes, BP, and then leprosy, all kinds of also in the reality also happening in our body. तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अगर होती है And then if you go to doctor, only one doctor can treat one. तो एक डॉक्टर शरीर के एक ही भाग को ही ठीक करता है. And they will tell you go to the hospital. वो कहेंगे अच्छा ये वाला करवा लिया अब ये वाला करवा लिया दूसरे डॉक्टर के पास जाओ ये वाला करवा लिया दूसरे डॉक्टर के So पास. हम इतना घूमते लेकिन प्रभु बताता है I heal all your तो sickness परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को चुना सकता हूँ because He is the maker. क्योंकि वो ही बनाने वाला है.
He can make it your body every part. परमेश्वर चाहे तो अपने सर से पैर से हर एक चीज को खुद बनाता है। And only God is the one who created, so He know every part where is no good. तो इसलिए हमारे शरीर को पूरी तरह से परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए जहाँ जहाँ पे परेशानी है परमेश्वर हर चीज खुद ही ठीक कर देता है। So that's what the Bible says. Thank God, count the इसलिए इस blessings. चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। I am the one who heal all your disease. परमेश्वर ही है जो अपने सारे लोगों को चला I am the one who heal all your problems, सारी परेशानियों को ठीक all करता your है, struggles, सारी मुश्किलों all को, your failures, सारी all your असफलताओं को, difficulties. सारी मुश्किलों को, Count those blessings. उन्हें गिनो। This is the blessing of this chapter is talk about the blessing that God has done. We should count those तो blessings. इसलिए ये भजन संहिता 103 में यही है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किया उसे हमें भूलना नहीं है। So the Bible said, thank God for all the disease that you have healed by God. तो परमेश्वर अपने सारे लोगों को जो जगह कर दिया है उसके लिए धन्यवाद देता है। Our sickness that God healed. हमारी जो बीमारियों को ठीक किया है, We cannot return back the money. हम पैसा तो वापस प्रभु को नहीं दे सकते। हम डॉक्टर के पास आते तो कितना दे दो? एंट्री में फाइन लेते हैं। कुछ महीना ना नहीं दिखता, रिसेप्शन प्लेस में आप go to the new life, just entry तक काउंटर देखना है, ठीक है? रिसीव करते हैं और आपको 500 फास्ट जमा करना है। वो दफ्तर भी नहीं दिखाया, it's just you need to just रजिस्टर करने के लिए, नाम लिखने के लिए। sick, and then also after checking, they will tell you so many things. और चेक करने के बाद देंगे ये एक्सरे करा लो, ये वाला टेस्ट करा लो, ये दवाई ले लो। And then we come out with a lot of फिर हम बाहर आएंगे, फिर जाके फिर 2-3 हज़ार रुपए खर्चा। And after that also they are not healed and they told us to do that one again, do that one अब again. लेकिन 15 दिन बाद फिर आना, फिर दूसरा टेस्ट करेंगे। But God said, all those money that we were able to give to doctor, तो जितना पैसा हम डॉक्टर को भरते हैं, but every sickness that He healed us, लेकिन परमेश्वर तो हमें हर रोज ठीक करते हैं। सुबह से शाम तक, those kind of money we want to return to God. तो अगर हम सोचे कि नहीं जितना पैसा हम डॉक्टर को भरते हैं, अगर हम परमेश्वर को भी भरना शुरू कर दें, ऐसे हम चाहे आज थोड़ा पेन तक ठीक हो गया, डॉक्टर ने प्रभु ये 100 खा बिल्कुल। आप आपका हेडेक था, आपका काकुति के दिया प्रभु ये 100 आप ऐसे करेगा तो you see how much we cannot able to give it. मतलब इतनी बार परमेश्वर में ठीक करते हैं और कि हम रोज 100 रुपए देंगे तो कितने हो जाएंगे। थोड़ा सा काट के दिया हम लोग के पास आया प्रभु हमने ठीक कर दिए तो हम see and then also God you return back, you can't able to return back. आप जब वापस ही प्रभु को देंगे तो कितना देंगे, आप देते ही रह जाएंगे, थक जाएंगे। We cannot able to return back. हम वापस नहीं कर सकते। But by free. पर फ्री में, मुफ्त में हमें मिल रहा है। Bible said He healed all the sickness. परमेश्वर हमें सारे रोगों को चंगा कर। ये फ्री नहीं होता, हम एक हफ्ता भी नहीं रख सकता। हम एक हफ्ता में एक दिन में कुछ आता रहता है, ये ठीक कर दिया तो इतना, एक कर दिया तो एक कर दिया तो इस सारी चीज के प्रभु का पैसा देंगे, प्रभु ने ठीक करते हैं और पैसा देंगे तो हम एक दिन में I think 10,000, 20,000, 30,000 So but God said I didn't want all this thing. तो परमेश्वर कहते हैं मुझे ये सब वापस चाहिए भी। But I want you. पर मैं क्या चाहता हूँ धन्यवाद है कि भूलना मत, तेरे करा क्या है, Count the blessings. इसे गिनना, For I know, give thanks to प्रभु God. को धन्यवाद दे। Amen. I will finish it. And then also verse 4. चौथा वचन, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Amen. Who redeem your life from destruction. वो तुम्हें प्राणों को बचा लेता है। See, many a time destruction come. बहुत बार परेशानी नष्ट होने वाली चीजें The आती हैं। Bible, English Bible talk about God is redeem you from all kinds of accident, from all kinds of struggle, from all that point that you are going to मतलब die. बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम मरने की कगार पे होते हैं और हम बच जाते हैं। Like for example, here destruction talk about destruction of earthquake, जैसे मान लो भूकंप आ गया, destruction of एक्सीडेंट हो गया, destruction of cyclone, या कोई भी मान लो आपदा आ गई, प्रकृति की आपदा आ गई, destruction of tsunami, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, destruction of famine, या सूखा पड़ गया, or destruction of black light, just like last time. What is that? Corona. So Bible says, I redeem you from all this. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इन सभी चीजों से बचा लेता हूँ। See, there is some time, destruction come like natural calamity. कई बार क्या होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, Many people without sickness. आप देखो कितने You लोग see throughout जब the बाढ़ years. आती है, भूकंप आती है, हजारों लाखों लोग ऐसे ही मर जाते हैं बिना बीमारियों के। You see, every year we see आप हर साल न्यूज़ में देखो, flood happening there. कहीं पे बाढ़ आ गई, Earthquake happening कहीं पे there. भूकंप आ This गया। year are so many foreign countries, so many earthquake coming and building. बाहर के देशों में इस साल में बहुत सारे भूकंप आए, बिल्डिंग की बिल्डिंग ऐसे ही टूट गई।
And you see Manipur many a times मणिपुर में landslide. कितनी बार लैंडस्लाइड The होता है, house they are sleeping, the house take पूरा away. पूरा घर ऐसे ही And in the people were in the mud, inside the mud. लोग मिट्टी में दब This जाते year many things happened in Manipur हैं। also. इस साल मणिपुर में And they भी used हुआ। to remove, फिर the मिट्टी खोदते हैं और person, इंसानों के शरीर को निकालते हैं। family. So many things. That's what the Bible says. I have, save you from all this destruction. तो परमेश्वर ने आपको इन सारी परेशानियों से बचाया है। So we should give thanks to तो हमें God. क्या करना है? धन्यवाद देना। And you are living safely. आप सही से जी You रहे are हैं, surviving. आप जिंदा हैं। So it is not all about that, we receive all those things. We should give thanks to every day. तो इन सब चीजों को पाने के बाद हमें क्या करना है? रोज धन्यवाद देना। Otherwise, God is not save us. परमेश्वर ने ना बचाए। You see in your house the earthquake comes. अभी घर में भूकंप आता है, In one night. एक रात बस एक सेकंड में आप सब मर सकते हैं, But God said, I save you from all this. लेकिन परमेश्वर आपको हर एक चीज से बचाया। So give thanks to तो Him. परमेश्वर को धन्यवाद देना। And who crown you with a loving kindness and tender और mercy. परमेश्वर तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Why? And then not only does He save us, सिर्फ परमेश्वर बचाता नहीं, He is loving वो us. प्रेम भी करता है। See, He loves us. हमसे प्रेम करता That's है, why He saved us. इसलिए तो बचाता है। So we should count the love of, the love that you receive from तो जब God. परमेश्वर ने प्रेम पाया है उसके लिए भी धन्यवाद We देना। can't return back to love Him. हम परमेश्वर को वापसी प्रेम तो कैसे करें? But God also said, पर परमेश्वर कहता है I love you. कि मैं तुमसे प्रेम करता He हूँ। also said, वो कहता है love the Lord. कि प्रभु से प्रेम With all your करो, heart, पूरे दिल, with all your पूरे mind, मन, with पूरे all your आत्मा soul. से। So in the Bible demand us. तो मतलब प्रभु हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, Because when you love God, क्योंकि जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे your life will be saved. आपका जीवन ही बचेगा। That's why He is telling us. इसलिए We परमेश्वर got the से benefit. हमें ही फायदा होता है। But if you love the world, और अगर आप दुनिया से प्यार करते your हैं, life is danger. आपका जीवन खतरे में है। See, when you love God, जब परमेश्वर your से life प्रेम is करते हैं, completely saved. आपका जीवन बचा रहता You will है, not do evil. आप पाप करना छोड़ देंगे, And you will not do wicked. आप गलत काम नहीं करेंगे, And you will not harm नहीं पहुंचाएंगे. अपने शरीर को खराब नहीं करेंगे, Because you love God. क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। But when you love the world, the things of this लेकिन world, आप जब प्रभु का प्रेम छोड़ के दुनिया से प्रेम करते हैं, they will destroy you. वो आपको नाश करेंगे। And not only destroy you, सिर्फ इतना ही नहीं, they will take you to hell. वो कहेंगे चलो ठीक है नरक चलो। But when we love God, लेकिन जब परमेश्वर से you प्रेम करते save हैं, from all the sickness, all the drunkard, wine, sexual immorality, adultery, idol, all these things. When you love God, you are saved. तो जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को हर काला जादू, तंत्र मंत्र, हर तरह की चुगली, गलत व्यवहार, व्यभिचार, इन सब पापों से बचा लेता है। And then now find last. और अंतिम वही He तो will satisfy your mouth with good things. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी हुकाब के समान नहीं होती। See, who satisfy your mouth with good things. मतलब परमेश्वर हमारी लालसा और इच्छाओं को भी पूरी करता है। हम लोग का मौत क्या चाहिए? पराठा चाहिए, पराठा चाहिए, और क्या? हलवा चाहिए, दही बल्ले हलवा चाहिए, दही चाहिए, बल्ले। क्या? See, God, Bible says, who satisfy all your mouth. मतलब हमारी जो हमारे मुंह को चाहिए ना, इच्छाएं, वो प्रभु पूरी करता है। पूरी चीज़। आपको मन में कितना ना आज का दिन भी बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, और होटल में जाके लेना पड़ेगा. Bible says it is sometimes now God is really just like you and I. कभी-कभी परमेश्वर बिल्कुल आपके और मेरे जैसा ही होता God है। is saying to us, प्रभु कहता है, I give you good food in your mouth. इतना बढ़िया खाना दिया था मैंने आज सुबह तुम्हें। क्यों बोलना मत? That is the things that the verse 5 is talking about. तो परमेश्वर के I satisfy you good thing with your मतलब mouth. परमेश्वर आपको अच्छी टेस्टी चीजें देता है, He giving you good taste food. अच्छा खाना देता है। आपका मन में था आज का दिन तो मैं क्या बकरी खाएगा, और आज का दिन तो मैं वेजिटेबल खाएगा, आज का दिन तो मैं छोले भटूरे खाएगा, आज का दिन तो मैं क्या था इंडिया में बहुत फेमस होता है पापा जी पास पाव भाजी, पिज्जा pizza, or people love now. I see in the road so many people fall in love with momo, chowmein. मेरा तो पसंद है, लेकिन मेरा प्रभु मेरा को सस्तिफाई करे चावल, बटर चिकन, yes. नान। So all these things see God प्रभु ने बताया मैंने ये सारे आपके दिया. See, you think that this thing you got it. कई बार कहता है अरे ये चीज तो मिल गई, You think that I have money, so you go and buy it. तो हमें लगता है कि मेरे पास पैसा था ना इसलिए तो हम इतना खरीद पाई। God is not provide money. अगर प्रभु ऐसा ना दे, Or God is not giving all this food and somebody is not prepared. और अगर कोई और ना बना रहा होता, प्रभु ऐसा प्रभु देता ही नहीं। God giving wisdom. प्रभु ने बुद्धि दी, Some people will eat, कुछ खाएंगे, some people will कुछ buy. बनाएंगे, Some people will supply, कुछ देंगे, some people will कुछ buy. खरीदेंगे। All these are the God's प्रभु plan ने सब कर रखा है to satisfy us. ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो पाए।
If God never, some people never make, अगर कोई लोग बनाए ही ना, God never put somebody to be made, कोई बनाने वाला ना रखे, then where will you get it? तो कहाँ मिलेगा? Also some people also making, कुछ लोग बनाते हैं, because some are eating. ये कोई खाता है तभी तो कोई बेचता है। So all these things are together and needed. तो ये सब चीजें साथ में जरूरी है। खाना वाला को बनाने वाला भी चाहिए, बनाना वाला को खाना वाला भी चाहिए। आप बनाएंगे कोई नहीं खाएगा तो क्या होगा? क्या बेकार हो जाएगा। बिल्कुल। So there is everything you think about round about God goodness. तो हर चीज परमेश्वर की भलाई के बारे में है। So there is a God is making somebody to make, तो परमेश्वर ने किसी को बनाने वाला बनाया है, somebody to supply, किसी को देने वाला बनाया somebody है, to buy, किसी को खरीदने वाला बनाया है, somebody to eat. किसी को खाने वाला बनाया No है, matter what. चाहे कुछ भी हो, खाना है तो खाना है। ट्रेन में भी आना है। So that is the thing that we. There's a God saying, give thanks to God. तो परमेश्वर को धन्यवाद। I justify परमेश्वर you. मेरी लालसाओं को पूरा करा है। God is the one who justifies. परमेश्वर मेरी लालसाओं को पूरे कर No man, कोई इंसान नहीं no करता, people, कोई लोग नहीं करता, no money. पैसा भी नहीं करता, He is the one परमेश्वर ही who है justifies all your needs, जो हमारी सारी इच्छाओं को all पूरी your करे। desires. हमारी सारी इच्छाओं So को we should count those blessings. तो मैं इन आशीषों को गिनना है। Sometimes we never count that, oh God giving chicken, oh God giving vegetable, oh God giving celebratory, oh God giving paneer puri. वो था मैं गोलगप्पे। गोलगप्पे। So हम उस चीज में ना नहीं मानता. See, you think you never say, oh I want to eat pani puri, oh I want to eat गोलगप्पे. हम मन में आते ना तो हम लोग के सामने सारे रोड में मिलते हैं. So these are we never count that blessing. तो हम इन आशीषों को भी नहीं गिनते। कल मैं मार्क लेने गया था, भूल गया इधर ले जाने के लिए। तो मैं आते तो मेरे सामने तो मैं यही प्रीति है दैट आंग पीछे बोला हाय पास्ता ऐसे था मेरा कौन है तो आसन को वही में बताया तो वो बताया मैं आपका शक्ल से पहचान लिया। she said that I know you through your face क्योंकि वो पास्टर को शक्ल से पहचानती, मैंने नहीं पहचाना पहचाना। भैया हाँ। हाँ तो वो लड़की मेरे पास आ गई इतना फ्रेंड था ओह पास्टर ऐसे मेरे को बता मैंने कौन है तो मैंने देखा आसन का बेबी thank you like that. So there is things that see God we and then he see that सुने बता रहे So there is a thing see God make but we forgot all these things God provide. तो परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करता है पर हम भूल जाते हैं। We got how much morning to till in night he provide. अभी देखो सुबह से शाम तक परमेश्वर ने कितना कुछ But we forgot it. But We we never forgot. see. Most even now today I'm talking about. We never thank God that who justify all your desire. मतलब हम सच में ही कभी धन्यवाद नहीं देते, हमारे जो मन में आता है परमेश्वर को कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर देता है। खाया पिया गया और प्रभु को धन्यवाद है। देना लेकिन प्रभु बताता है थैंक गॉड फॉर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन Amen. So let us count the blessing of God परमेश्वर को धन्यवाद देना and so that you will renew like an eagle. ताकि हमारी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए। So when you give thanks to तो God, जब परमेश्वर को धन्यवाद दें all the benefit that you receive from तो God, जितने फायदे हम प्रभु से पाते हैं God is so happy. परमेश्वर से कितना खुश होता है। When you give money, जब आप पैसा देते हैं God is not happy. प्रभु खुश नहीं होता। And when you are do so many things to God, जब आप बहुत कुछ काम करते हैं God is sometimes not happy. कभी प्रभु उससे भी खुश नहीं होता, But to make happy one, लेकिन प्रभु खुश करने के लिए give thanks. प्रभु को धन्यवाद। And that also one, और उसमें भी with all our heart. पूरे दिल से पूरे That's मन what से David said in the beginning. उसने क्या बोला Bless the Lord, कि हे मेरे oh my मन soul. प्रभु को धन्यवाद दे। छोटा चीज को बड़ा चीज को सारी चीज के लिए हम धन्यवाद करना है बिल्कुल। और वो चीज को काउंट करके ना प्रभु का हम धन्यवाद करते काउंट करते ना दिल से मन से स्ट्रेंथ से ऐसे करना है हम मन से कुछ करते हैं दिल अलग और दिल अलग होते हैं हम मन अलग प्रभु ही दिखते हैं लेकिन प्रभु बताता है इन द बिगिनिंग द बाइबल से इन द Psalm 103 but David was blesses the Lord all my soul कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे। so that is why God wants those things परमेश्वर चाहता ही हमसे ये है। if you give thanks to God with all your heart with all your अगर आप पूरे दिल पूरे मन से धन्यवाद देते हो for God is enough प्रभु का बस इतना ही चाहिए था। प्रभु हाँ मैं ही सही था और बहुत अच्छा मेरा बेटा बेटी मेरे पास आओ मैं आपको देती रहेंगी you see and he will say oh he was so pleasing with us and he will give more तो परमेश्वर से खुश हो जाता है और हमें फिर और देता है। but we didn't do that पर अगर हम नहीं धन्यवाद then he देते will say तो प्रभु मैं सोचता होगा कितना दिया
दिया, इतना खिलाया, इतना कपड़ा दिया, इतना घर दिया, इतना फ्रेंड दिया, इतना चर्च का आशीष दिया, इतना आपका काम कर दिया, लेकिन वो लड़का क्या कर रहा है? मेरा को पास नहीं आता, बोलते हैं ये क्या इंसान है? प्रभु ऐसा हो जाएगा। So there is why don't forget it. तो हमें ये चीजें भूलनी नहीं है। God said no, don't forget all the benefits. परमेश्वर कहते हैं मेरे सारे उपकारों को नहीं भूलना है। Amen. आमीन। Let us give thanks today. तो आइए हम